because I wasn't getting through it. Okay. Now you all know the topic for today is thyroxine. Okay. The hormone which comes from thyroid gland. We are going to do about its synthesis, its metabolism of iodine, and how the coupling occurs, how the hormone is synthesized and then secreted, mechanism of action. Very little, we'll go through it, and then we'll come to the functions, and if time allows us now, we'll go through its functional abnormalities, all right? Because the functions of thyroid hormone is very, very important. Now, as you all know, thyroid gland secretes thyroxine, and this thyroxine plays a vital role in आवाज बहुत हो रही है heart and muscle maintenance of bone. Okay, now remember one thing, these two hormones coming from thyroid gland, that is triiodothyroxine, it's known as T3, and tetraiodothyroxine, that's T4. Tri is T3, tetra is T4. We will be using abbreviation for it. Okay, T3 and T4. I'm not going to write everywhere triiodothyronine and tetraiodothyronine. All right, now they are these two hormones. They initially, remember, okay, click your memory back to the amino acid tyrosine, right? A non-essential amino acid tyrosine, which is coming from phenylalanine. Phenylalanine is essential amino acid. From phenylalanine, we get tyrosine by hydroxylation. Now, tyrosine being a non-essential amino acid is very important because tyrosine, if you remember protein metabolism, okay, tyrosine gives you the hormone T3, T4, and it also gives you the hormone epinephrine and norepinephrine. All right. Okay, अभी हम hormones पे ही हैं, और चीजें भी हैं tyrosine से, but we are not going into that. All right. Now a bit about the release of thyroid hormones. See, from hypothalamus, TRH is coming, thyroid releasing hormone from hypothalamus. It's acting on the pituitary. All right, pituitary से जो hormone release हो रहा है, that is TSH, thyroid stimulating hormone. Now this thyroid stimulating hormone, can you see on my screen? See, thyroid stimulating hormone directly acting on the thyroid gland. Thyroid gland के ऊपर क्या होता है? There is thyroglobulin. It's thyroglobulin. It's a glycoprotein. Okay, on which tyrosine, T3, thyroxine bolo, T4 and T3 is being synthesized. Initially, your major hormone is T4. T4 is the major hormone, और T4 से T3 बनता है in peripheral tissues. So we focus mainly on the T4. वो बनेगा thyroglobulin पे, और ये TPO is thyroxine peroxidase. Okay, this peroxidase also has a major role to play. इसको भी हम आगे जाके लेंगे. This broken line here is your feedback mechanism. Okay, it shows you कि अगर thyroid hormone ज्यादा हो जाएगा, it will send an impulse to the pituitary. That's a short loop. Pituitary को impulse भेजेगा कि I don't want any more of TSH. और long loop में feedback mechanism में it will tell the hypothalamus that stop sending TRH. I don't need it. I'm enough in the blood. Follow the point? This is your feedback. Okay? मैं अभी यहीं पे बता रही हूँ feedback, आगे जाके भी है, but if we don't have time, because I think we have wasted a lot of time today. Okay? Now, thyroxine, अगर blood में ज़्यादा है, तो there is a feedback mechanism. It's a short loop and a long loop. Short loop में the message is negative feedback is sent to pituitary. I don't want any more of TSH. And in the long loop, message जाता है hypothalamus को not to send any more of TRH. All right? ताकि pituitary से TSH ना आए, ताकि thyroxine ना release हो. All right. अब इसी पिक्चर को देखो. इसी पिक्चर को ध्यान में रखते हुए T3 and T4 is being released into the circulation. All right. Now, T3 and T4 in the circulation, it does not travel on its own. Okay. अपने own पे नहीं होता. It is with the globulin. It's with thyroxine binding globulin and with albumin and with a TTR. This TTR is trithyroerythrin. ये
आगे जाके मैं इसको पूरा भी बताऊंगी, ओके। लेकिन इतना याद रखो कि सर्कुलेशन में T3 and T4 they are not rotating या transporting freely, okay, they are bound होके circulate करते हैं, okay, with TBG, with albumin and that's erythritine, okay। इसको आगे मैं इसको और पूरा लिख के एक्सप्लेन किया हुआ है उसकी स्पेलिंग के साथ, alright। एंड देन इसकी एक्सक्रीशन क्या होती है, देखो एक्सक्रीशन थ्रू द किडनी होगी, ओके। लेकिन रिमेंबर कि T3 T4 आर यूजुअली कैटाबोलाइज्ड इन द लिवर, दे गो टू द लिवर। किडनी से तो एक्सक्रीशन है बट बहुत थोड़ा, ओके, टू अ नेग्लिजिबल अमाउंट, ओके। कमिंग टू द लिवर, व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टेड इन द लिवर T4 is catabolized या degraded। डिग्रेडेशन कैसे हुई, ये it is with the glucuronide transferase, okay, UDP, uridyl diphosphate glucuronide transferase। ये वही glucuronide transferase है जो bilirubin को करता है conjugate, remember glucuronide transferase, okay। इसी तरह जो T4 है उसका भी जब कैटाबॉलिज्म होता है, so we have the enzyme uridyl diphosphate glucuronide transferase जो उसको कैटाबोलाइज करेगा, उसको कॉन्जुगेट करके एक्सक्रीट आउट करेगा थ्रू बाइल, ओके। देन वी कम टू द टारगेट टिश्यूज। यहाँ पे ये सारे टारगेट टिश्यूज हैं और रिमेंबर दैट थायरॉक्सीन इट इज एक्टिंग ऑन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के सारे सेल्स के ऊपर थायरॉक्सीन का इफेक्ट है। ये वो हार्मोन है, देखो इंसुलिन इतने सेल्स पर इफेक्ट करता है, किडनी पे भी करेगा, हर एक पे करेगा, लेकिन थायरॉक्सीन को तो हम ये क्रेडिट देते हैं कि इट्स ऑन ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ऑलराइट। ग्रोथ में भी है, मसल डेवलपमेंट में, मसल को टच एवरीवेयर देयर इज अ रोल फॉर थायरॉक्सीन, ऑलराइट। आगे जाके हम वो भी देखते हैं, ऑलराइट, ओके। ये NIS यहाँ पर है, इट इज दी आयोडीन सिम्पोर्ट सिस्टम, ओके। पहले हम कहते थे सोडियम पोटेशियम एटीपेज है जिससे आयोडीन ट्रैप होता है, अंदर आता है। अब हम कहते हैं नहीं, आयोडीन के लिए एक सिम्पोर्ट सिस्टम है, दैट इज सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्ट सिस्टम, जो आयोडीन को ट्रैप करता है इनटू द थायरॉइड फॉलिकल्स, ठीक है। आगे हम उसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा इस पिक्चर से आई होप अ लॉट ऑफ थिंग्स आर क्लियर एंड यू हैव अंडरस्टूड इट, राइट। I hope so. All right, now take a deep breath. Let me take a deep breath too. And now then again, a pause. And now we start. Now see, this is the structure of iodine. Okay, it is iodine and this is tyrosine. Okay, देखो ये वही structure है tyrosine का जो हमने पहले भी देखा हुआ था, phenylalanine के बाद tyrosine। फर्क क्या है? Tyrosine has got an hydroxyl group. अगर if I remove this hydroxyl group from here, ये बन जाएगा phenylalanine with the addition of hydroxyl group here। यहाँ पे जो hydroxyl group है ये बना tyrosine, okay। आयोडीन लगा दो, क्या बन गया? मोनो आयोडोटायरोसिन, alright, MIT, okay। Now if I add 2 iodine, okay, देखो ये 2 आयोडीन है, एक इधर है एक इधर है, ठीक है। एक पोजीशन 1 पर है, एक पोजीशन 5 पर है। This is 1 position, okay। Now this is 2 position, 3 पे ये चेन आती है, ओके। 4 5 6, राइट। 1 2 3 4 5 6। Now at position 1 I have got an iodine, at position 5 again there is an iodine, तो क्या बना? डाइआयोडोटायरोसिन या DIT। समझ में आ गई बात? मोनो एक, डाई 2 at 1 position and at 5 position, all right, okay। Now what happens if I have 2 molecules of 1 molecule of DIT, 1 molecule of MIT, अगर ये दोनों ज्वाइन होते हैं तो I get ट्राइआयोडोथैरोनीन और T3। T3 क्या है? Diiodotyrosine conjugates with monoiodotyrosine and we get 1 molecule of T3, triiodothyronine, all right। If I have 2 molecules of DIT, diiodothyronine के 2 molecules, if they conjugate, right? They conjugate. We're having 2 iodine atoms inside a tyrosine molecule. So what happens? The result is tetraiodothyronine or T4. Clear हो गई बात? केमिस्ट्री कोई मुश्किल नहीं है इसकी। It's
very easy. Okay, nothing to swallow. इतनी मुश्किल नहीं है. Nothing. Triiodothyronine, one DIT, one MIT. और tetraiodothyronine, 2 molecules of DIT, diiodothyronine. Conjugate कर दो, क्या बन गया? T4 या tetraiodothyronine. And remember, T4 is your major hormone. Okay, T4 is your major hormone which is being produced. T4 जो है जब वो पेरिफेरल टिश्यूज में होता है वो डीआयोडिनेट होता है and then it forms T3. Your main hormone जो secrete होगा that is T4. Then T4 deiodinates to give you T3. Got it? Got it? आगे चलते हैं. Okay, because आगे भी उसको हम रिपीट करेंगे. Alright. अब एक पॉइंट यहाँ पर है जो I want to stop and tell you about reverse T3. Okay, what is reverse T3? Reverse T3 में देखो यहाँ पर है 2 आयोडीन और एक ट्राइआयोडोथैरोनीन एट 5 प्राइम पोजीशन पर आता है. ठीक है, ये 5 प्राइम पोजीशन होगी, वहां पर एक आयोडीन होगा. दैट इज रिवर्स T3. बस, इससे ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाना है. ओके, नो मोर, वी डोंट हैव टू गो इनटू ऑल दैट डिटेल्स ऑफ केमिस्ट्री. कोई हमको केमिस्ट्री में प्रोफेसरशिप नहीं लेना. ऑलराइट, so what we need, we are doing it. Okay. Now hypothalamus secretes TRH. It stimulates pituitary to secrete TSH. Now TSH आया, thyroid stimulating hormone. ये receptors पर bind किया on the thyroid cells. ठीक है, and stimulates the steps in production and secretion of thyroid hormone. TRH hypothalamus secrete किया TSH. TSH secrete हुआ, आया thyroid cells पर. ठीक है, और थायराइड सेल्स को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस सिक्रीट थायराइड हार्मोन. ठीक है, अच्छा, अब एक बात याद रखो कि थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन में आयोडीन प्लेज अ मेजर रोल. बहुत बड़ा रोल है. अगर आयोडीन नहीं होगा ना बॉडी में, थायरॉक्सिन नहीं बनेगा. रिमेंबर दैट. जो गोइटर होता है अक्सर उस जगह पर होता है जहां पर आयोडीन अवेलेबल नहीं होता. ठीक है, हम वो भी देखते हैं आगे मैं बता रही हूँ. थोड़ा सा पहले आयोडीन की मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं, देन वी प्रोसीड फर्दर. ओके, नाउ डेली आयोडीन रिक्वायरमेंट इज 150 to 200 माइक्रोग्राम्स पर डे. ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है. अच्छा, सोर्सेज आयोडीन की क्या है? वाटर, फिश, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड आयोडीनेटेड सॉल्ट. ऑलराइट, देखो वेजिटेबल्स में है, लेकिन कौन से वेजिटेबल्स लैक करते हैं मैं आगे बता रही हूँ. ठीक है, उसको हम कहते हैं गोइट्रोजिनस फूड्स, जिसमें आयोडीन नहीं मिलता हमको, एंड गोइटर कॉज करते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ द नेक. ओके, और अब तो खैर हमारे पास वो सॉल्ट अवेलेबल है मार्केट में. कॉमर्शियल मार्केट में देखो तो लिखा होता है आयोडीनाइज्ड सॉल्ट. वी हार्डली नीड इट. व्हाई? बिकॉज वी आर एट द सी लेवल, और सी वाटर में बहुत आयोडीन है, हमें जरूरत नहीं है. लेकिन जो माउंटेन्स पे रहते हैं ना बेटा, ऊपर हाई लेवल पर, वहां पे माउंटेनस एरिया में आयोडीन नहीं होता. उनके पास आयोडीन नहीं होता. दे लैक आयोडीन, so they do need iodized salt. Okay, हमें इतनी जरूरत नहीं है. हम माशाल्लाह कराची में रहते हैं. we have got enough of sea water with us. Okay, all right. Now 80% of total body iodine is stored in thyroid gland. याद रखो, बॉडी का आयोडीन 80% तो वो थायराइड ग्लैंड स्टोर करके रखता है. और ब्लड लेवल इज 5 to 10 मिलीग्राम्स पर डेसिलीटर. ठीक है, इट्स 5 to 10 मिलीग्राम पर डेसिलीटर. माउंटेनस रीजन्स आर कॉल्ड गोइट्रस बेल्ट्स, जैसे हिमालय वगैरह या ऊपर हाई माउंटेन्स, दे कंटेन वेरी लिटिल आयोडीन. ओके, एक जमाना था जब हम सीवीड वाज अ कमर्शियल सोर्स ऑफ आयोडीन. सीवीड से आयोडीन निकालते थे, सीवीड जमा करते थे, उससे आयोडीन निकलता था, उसको फिर यूटिलाइज करते थे. ठीक है, अब नहीं. वी हैव गॉट इनफ ऑफ कमर्शियल अवेलेबल जो है ना मार्केट में आयोडाइज्ड सॉल्ट मिलता है. ठीक है, आयोडीनेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट हैज डिक्रीज केसेस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म. अब हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस जो है ना बहुत कम नजर आते हैं बेटा, नजर आते हैं, बट नॉट दैट मच. और हाँ, कभी कभी फिजियोलॉजिकल गोइटर भी नजर आता है. व्हाट इज फिजियोलॉजिकल गोइटर? देखो, देयर इज एन एज लाइक फ्रॉम 18 इयर्स टू 22 23 इयर्स. कभी कभार उन बच्चों में, आई हैव सीन इट मोस्टली इन गर्ल्स, क्या होता है, देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिसको हम गोइटर कहते हैं. That is because in their body during that period of growth from 18 years to like 20 to 23 years, there is lack of iodine.
वो या तो आयोडीन को मेटाबोलाइज प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हैं, ट्रैपिंग नहीं कर पा रहे हैं टू थायराइड फॉलिकल्स, और थायरोक्सिन बनना कम होता है, तो दैट रिजल्ट्स इन गॉइटर। बट देन आफ्टर द एज ऑफ 20 to 23 खुद ब खुद जो है ना वो स्वेलिंग खत्म हो जाती है, गॉइटर खत्म हो जाता है। ऑलराइट, इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल गॉइटर, कोई पैथोलॉजी नहीं है, इट्स अ फिजियोलॉजिकल गॉइटर। ठीक है, समझ में आ गई बात? व्हाट इज फिजियोलॉजिकल गॉइटर? ऑलराइट, टेक अ डीप ब्रेथ एंड okay, now then we start. What is goitrogenous food? ठीक है, या goitrogenous ingredient? You see, there are certain substances in food stuff which prevent utilization of iodine. ठीक है, जैसे maize में, मकई में, millet, bamboo shoots, sweet potatoes, बहुत शौक से खाते ना sweet potatoes, right? Beans and cassava, they are goitrogenous. cassava भी दिखते बिल्कुल स्वीट पोटैटो की तरह की शेप के होते हैं, okay, but they are very hard to cook. अच्छा, कैबेज बहुत कॉमनली हम खाते हैं, टेपियोका, they all contain thiocyanate. ठीक है, देखो कैबेज और टेपियोका में thiocyanate होता है which inhibits iodine uptake by thyroid. ठीक है, मैं नहीं बोल रही कि आयोडीन कैबेज में नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन क्या होता है, ये इसके अंदर थायोसाइनेट्स भी होते हैं, दे इनहिबिट अपटेक ऑफ आयोडीन, आयोडीन का अपटेक इनटू थायराइड फॉलिकल्स स्टॉप करता है, तो जाहिर है आयोडीन की ट्रैपिंग नहीं होगी, आयोडीन थायरोक्सिन की तरफ जाएगा नहीं। ठीक है, ओके, मस्टर्ड सीड्स, यू नो व्हाट्स मस्टर्ड? हम उसको उर्दू में राय बोलते हैं, मस्टर्ड सीड्स कॉमनली हमारे घर में यूज होते हैं। ओके, दे कंटेन थायोयूरिया which inhibits iodination of thyroglobulin. वो मस्टर्ड सीड्स बहुत अच्छे होते हैं, they are very good in food also, and mustard का तो सॉस भी यूज होता है, but remember that it also contains thiourea. मतलब nothing should be used in excess. Remember, थोड़ा खाना अच्छा लगता है, but if you eat lot of it, excess में कोई चीज खाओगे तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा. If you eat mustard, lot of mustard day and night, then it is causing goiter. Otherwise not. ठीक है, अच्छा, it inhibits iodination of thyroglobulin. ठीक है, थायरोग्लोबुलिन पे आयोडीनेशन नहीं होने देता है, क्योंकि थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर फिर आयोडीन लगेगा तो थायरोक्सिन बनेगा और रिलीज होगा। ऑलराइट, आहिस्ता आहिस्ता मैं उधर भी आ रही हूँ। ठीक है, अच्छा, अब हम पहले काम क्या करेंगे? The first thing we do is we are going to go through synthesis and secretion of thyroxine. Alright, now see, there are I think 7 to 8 steps in the formation of thyroxine itself. So we start with number 1. The step number 1 क्या है? Synthesis and secretion. Thyroid stimulating hormone will stimulate this step 1. ठीक है ना, वो तो step 1 को stimulate उसको करना ही है, right? Now thyroid gland takes in and concentrates iodine under the action of TSH. Thyroid hormone, thyroid gland will take up iodine, concentrate iodine and activate it. Okay? Now, there was a time when uptake of iodine was linked with sodium potassium ATPase system. हमारे जमाने में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने यही पढ़ा था कि आयोडीन जब थायराइड फॉलिकल सेल्स में आता है तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज सिस्टम होता है, नॉट एनी मोर। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री हैज एडवांस्ड अ लॉट, अब नहीं है, अब क्या है? प्रेजेंट है सोडियम आयोडीन सिम्पोर्ट कैरियर सिस्टम। ठीक है, ये NIS, रिमेम्बर मैंने वहां पे लिखा था, वहां पे पिक्चर में लिखा था NIS, मैंने कहा था दिस इज सोडियम आयोडीन सिम्पोर्ट। ये सोडियम आयोडीन सिम्पोर्ट सिस्टम है जो कि आयोडीन को अंदर लेकर जाती है इनटू द फॉलिकल्स। ठीक है, ऑलराइट, अच्छा, ये क्या होता है? आयोडाइड इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल बाय द सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर सिस्टम and oxidized by thyroid peroxidase. remember वहां पे लिखा था TPO, याद है? मैंने कहा था ये थायराइड peroxidase है, लेकिन आगे मैं बताऊंगी, ये मैंने कहा था ना कि आगे चल के हम इसको देखेंगे पूरा पूरा, वहां पे तो एब्रिविएशन लिखा था। ठीक है, तो क्या है ये? अब बच्चों आप लोग जब स्लाइड को देखोगे ना, प्रीवियस स्लाइड को जो पहली वाली स्लाइड दिखाई थी उसमें सब है, ऑलराइट, तो नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। ठीक है, अब NIS है and it's oxidized by thyroid peroxidase. Iodine आया and that through the Simport system and it's oxidized. Now TPO, thyroid peroxidase, also catalyzes the iodination of tyrosine residues on thyroglobulin.
ठीक है। अब देखो थायरोग्लोबुलिन को शॉर्ट है TG। ये थायरोग्लोबुलिन का जो मॉलिक्यूल है ना, उसके ऊपर टायरोसिन, उसके अंदर है टायरोसिन के रेसिड्यू, ठीक है। इट्स अ लार्ज मॉलिक्यूल। I hopefully think physiology people will tell you, okay, about this thyroglobulin molecule. It's a big, large molecule. I think पता नहीं कितने अमाइनो एसिड्स है। I think 115 उसके अंदर से जो अमाइनो एसिड्स टायरोसिन है, उसके ऊपर आयोडीनेशन होती है, और वो भी कैटेलाइज्ड बाय TPO, okay, that's thyroid peroxidase. Now all processes in the cell are stimulated by binding of TSH to TSH receptor. अच्छा, ये सब कब होता है? आयोडीन की अंदर आना, coming of inside, activation of iodide to iodine, making it more active, and then coupling it. It's all under the effect of TSH. TSH आया, उसके TSH receptors पर present है thyroid glands पर, it binds to the receptor, remember? Okay, binding of TSH to its receptor present on the cell surface, वो तो याद है ना, how these they act. Then thyroid hormones are bound to thyroxine binding globulin. अब T4 अगर बन जाता है तो it binds to thyroxine binding globulin, albumin and prealbumin. वो ट्रांसपोर्ट होता है to thyroxine binding globulin, albumin and prealbumin. Okay, okay. Then we come to step 8. Now this step of uptake is inhibited by thiocyanate and perchlorate, nitrate. They are competitive inhibitors of carrier mechanism. ये जो carrier mechanism जो है इनका, how will they be carried out? इसका जो inhibitor है वो है thiocyanate and perchlorate, nitrate, और भी बहुत से हैं, ठीक है, लेकिन ये मेन है जिसका नाम हम commonly जानते हैं. What is the clinical manifestation? देखो ये भी congenital defect है, inherited defect है. क्या है? आयोडीन ट्रैपिंग डिफेक्ट. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बाय बर्थ आयोडीन ट्रैपिंग नहीं होता. ओके, they cannot trap iodine. We cannot do anything because it's congenital. It's by birth. They have taken it hereditary चला आ रहा, ठीक है, it's hereditary. So what we do is it's treated with large doses of iodine. वो आयोडीन की ट्रैपिंग नहीं होती नॉर्मली, तो we give them excess of iodine from outside. उनको डेली डोजेस दिया जाता है आयोडीन के, ओके, एक्सेस में देंगे ताकि थोड़ा बहुत आयोडीन ट्रैप हो और थायराइड थायरोक्सिन बने. ऑलराइट, बात खत्म हो गई बेटा. आयोडीन आया. अब क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ टायरोसिन. फिगर 1 में मैंने बताया है. आई शो यू द फिगर. व्हाट इज दिस? टायरोसिन की ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है? आयोडाइड इज टेकन अप बाय थायराइड सेल्स एंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू एक्टिव आयोडीन. जो मैं बोल रही थी ना, एक्टिव आयोडीन बनता है. ऑलराइट, इट्स दैट इट इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम थायरोपेरोक्सिडेज. ये TPO की बात हमने पहले भी की, अभी भी कर रहे हैं. It is catalyzed by thyroperoxidase. The reaction needs hydrogen peroxide and is NADPH dependent reaction. समझ आ रही है बात? Are you following this point बेटा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की यहाँ पे जरूरत है और NADPH. क्यों? क्योंकि हमको हाइड्रोजन भी चाहिए, तो it is coming from NADPH. और TSH stimulates this enzyme. ये जो एंजाइम है ना थायरोपेरोक्सिडेज, इसको है TSH. It requires it. Thiouracil, thiourea, methimazole, nitrophenols, isoflavones are inhibitors. किसके inhibitors है? इस एंजाइम के, TPO के, थायरोक्सिन पेरोक्सिडेज. ऑलराइट, इसके सारे ये inhibitors हैं जो भी मैंने बताए थे सारे. ऑलराइट, देखो आयोडीन अंदर आता है, आयोडाइड आयोडीन बन गया, एक्टिव हो गया. कैसे? विद द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड फिर वाटर बन जाता है. इट नीड्स एन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन विद इट एंड NADPH. ये NADPH डिपेंडेंट एंजाइम है, TPO, ठीक है. और ये NADPH कहाँ से आता है? इट इज कमिंग फ्रॉम HMP शंट. रिमेंबर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हमने कहा था हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कर चुके हो बेटा, राइट? यू हैव डन इट. तो थोड़ा सा क्लिक करो अपने दिमाग को ऑन द बैक मेमोरी, ओके, एंड यू रिमेंबर HMP शंट जो NADPH देता है. रिमेंबर, और हमने एक दफा पढ़ा भी था कि HMP NADPH इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एक्टिविटी. ओके, यही NADPH है जिससे हमको राइबोज भी मिलता है, और यही NADPH है जो हमको थायरोक्स आयोडीन को एक्टिव आयोडीन बनाता है. ओके, टू इनकॉर्पोरेट इट इनटू T4 और मेक
थायरोक्सिन। ओके, स्टेप 2 हो गया। अब हम स्टेप 3 पर है। स्टेप 3 पर बेटा क्या है? आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन। व्हाट इज स्टेप 3? आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन। थायरोग्लोबुलिन ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें 8 to 10% कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये थायरोग्लोबुलिन के अंदर ही टायरोसिन के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, and it has 8 to 10% carbohydrate. It contains 115 tyrosine residues. Out of this, 35 residues can be iodinated. थायरोग्लोबुलिन जो मॉलिक्यूल है उसमें टायरोसिन है, ठीक है। 115 टायरोसिन के रेसिड्यूज होते हैं थायरोग्लोबुलिन में, उसमें से 35 रेसिड्यूज ऐसे हैं जो आयोडीनेटेड होते हैं। सारे के सारे आयोडीनाइज नहीं होंगे, 35 होते हैं जो उस पे आयोडीन लगता है। Iodination on thyroglobulin takes place in follicular spaces and thus MIT and DIT is produced. ठीक है, यहाँ तक आ गए। ये जो थायरोग्लोबुलिन है TGB, ग्लाइकोप्रोटीन, 8 to 10% कार्बोहाइड्रेट, 115 टायरोसिन होते हैं, उसमें से 35 को आयोडिनेट करते हैं in the follicular space और MIT and DIT is produced. ठीक है, अब जरा इस फिगर पे आ जाओ, दोबारा फिगर पर आ जाओ। फिगर में क्या दिखा रहे हैं? प्लाज्मा में थायराइड सेल्स है ये और एसिनर स्पेस है, ठीक है। प्लाज्मा में आयोडीन आता है, आयोडाइड होता है, उस थायराइड सेल लेकर आयोडीन बनाता है इसको एक्टिव। अब अच्छा, अब ये एसिनर स्पेस में भी जाता है। स्टेप 3 पे ये थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के अंदर जो भी ये DIT बनाया टायरोसिन से लगकर, ठीक है। अब DIT बनाया, DIT से फिर वो T4 बन गया, ठीक है ना। 2 मॉलिक्यूल DIT के कंडेंस हुए तो T4 बन गया। अब ये T4 is a colloid बन गया, it's stored, okay, it's stored in the colloidal cells, स्टोर हो जाता है as a colloid। फिर क्या होता है? अगर थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन में T4 है, जहां से फिर दोबारा ये DIT बनकर भी आयोडीन दे सकता है और आगे जाके ये T4 इसमें से हाइड्रोलाइज हो जाता है। प्रोटीएज एंजाइम इसको तोड़ेगा और T4 को थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन से अलग कर देगा, प्लाज्मा में चला जाएगा। अगर ये प्लाज्मा में चला गया तो ये थायरोक्सिन बाइंडिंग से इसको ब्रेकअप करते हैं थ्रू प्रोटीएसेस। ओके, T4 जो है वो अकेला ट्रैवल नहीं करता, मैंने पहले ही बोला ना बेटा, इट इज आइदर बाउंडेड विद ग्लोबुलिन विद एल्ब्यूमिन। ओके, अब ये प्रोटीन बाउंड आयोडीन यहाँ से निकला तो ये प्रोटीन बाउंड आयोडीन अलग चला गया और ये T4 T3 में इन द पेरिफेरल टिश्यूज में भी कन्वर्ट हो जाता है। ऑलराइट, अब हम स्टेप 4 पर आ गए। स्टेप 4 पर क्या है? कपलिंग ऑफ DIT, ठीक है। अभी हम उधर ही अटके हुए हैं, हम निकले नहीं है। ऑलराइट, वी आर स्टिल देयर वेयर वी वर। नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ कपलिंग ऑफ DIT. Some tyrosines and thyroglobulin, they align opposite to each other, ठीक है। In thyroglobulin, what happens? Some of the tyrosines are opposite to each other, and those will be coupled who are opposite. 2 DIT will couple, and 1 mole of T4 is formed, and then it is attached to thyroxine binding globule. Triiodothyronine is formed by coupling of 1 MIT and 1 DIT to give you T3, or by deiodination of T4 to T3. या तो एक MIT और एक DIT T3 देगा, या deiodination of T4 to T3. Now remember, deiodination of T4 to T3 is a major step. ये बहुत बड़ा स्टेप है और ये बॉडी में ज्यादा बनता है by T4. T4 से T3 ज्यादा बनता है उस comparatively for MIT and DIT to couple together. Okay? अच्छा, clinical effect इसका क्या है? There is an inborn error in iodotyrosyl coupling defect in step 4. Step 4 में ये जो coupling defect है ना, MIT और DIT और MIT और DIT, ये सारा पे जो है ये iodotyrosyl का एंजाइम की डेफिशिएंसी है, कपलिंग डिफेक्ट है, नहीं होता कपलिंग, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है? ये कॉन्जेनिटल है बेटा, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म में आएगा, और ये ट्रीटमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ T4। ऐसे बच्चों को पैदा होने के बाद उनको देना पड़ता है T4 फ्रॉम आउटसाइड। ऑलराइट, बात हो गई। नाउ वी कम टू स्टेप 5, दैट इज स्टोरेज, ठीक है। थायरोग्लोबुलिन स्टोर्ड इन थायराइड एसिनाई विद T4 रेसिड्यू, स्टोर कर लिया उसने। स्टेप 6 हाइड्रोलिसिस है, स्पेसिफिक प्रोटीएसेस हाइड्रोलाइसिस T4 फ्रॉम इट्स बाइंडिंग, ठीक है। थायरोग्लोबुलिन में जो बाइंड होता है ना T4, जो आगे पीछे मैंने स्लाइड में बताया था, तो प्रोटीएस का भी जिक्र किया था, तो प्रोटीएस उसको हाइड्रोलाइज कर देता है, and then it can go in the plasma bound with globulin or with albumin, ठीक है, it can travel. Alright.
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं? इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, एब्नॉर्मल थायरोग्लोबुलिन इज सिंथेसाइज्ड बट रिजल्टिंग इन डेफिशिएंट प्रोटियोलाइसिस एंड डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन। ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। द डिफेक्ट इटसेल्फ इन द ये कहना चाहिए इन द ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, इसके अंदर खुद ही होती है डेफिशिएंसी, कहीं पे डिफेक्ट हो जाता है, तो ऑफ कोर्स इट्स जेनेटिक, so we cannot do anything, but we can only do is we can give thyroxine from outside. All right, now step 7 है, step 7 क्या है बेटा? It's the release of T4. T4 form is released into the bloodstream. All right, T3 is produced by deiodination at position 5 either in thyroid cells or in peripheral tissues. ठीक है, ये हमने पहले भी बात की। अच्छा, नॉर्मली देखो T3 T4 रेशियो पता है क्या है? 7:3। ये नॉर्मल रेशियो है। T3 हालांकि मेजर हार्मोन T4 है, लेकिन अगर रेशियो देखें तो T3 इज मोर देन T4, तो रेशियो होता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लेवल पर 7:1। रिवर्स T3 मैंने पहले भी बताया था, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डीआयोडीनेशन एट पोजीशन 5 प्राइम। याद है मैंने पोजीशंस बताई थी 1 2 3 4 5 वाली पिछले स्लाइड्स में, उसी तरह 5 प्राइम की जो पोजीशन है वहां पर जो आयोडीन का है दैट इज रिवर्स डीआयोडीनेशन। ठीक है, वहां से आयोडीन निकलता है, तो वी कॉल इट 5 प्राइम पोजीशन एंड दैट्स अ रिवर्स आर। इसका मैंने आई शोड द पिक्चर टू यू दैट आई हैव ड्रॉन मायसेल्फ. Okay, now biological activity of reverse T3 is negligible. Okay बेटा, reverse T3 की कोई biological activity नहीं, कुछ भी नहीं है, but it is there, होता है बनता है, उसकी कोई biological activity है ही नहीं। अच्छा, step 8 क्या है? Salvage of iodine. T4 is deiodinated by enzyme deiodinase in liver and target tissues. Okay, बन गया T4 थायरोक्सिन, उसका काम भी हो गया। उसके बाद ये डीआयोडीनाइज होता है, आयोडीन निकलता है। कैसे निकलता है? एंजाइम में डीआयोडीनेज, ये लिवर और टारगेट टिश्यूज में से बन जाता है, इट इज रिमूव्ड। डीआयोडीनेज इज अ सेलेनियम कंटेनिंग एंजाइम। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा नोट कर लो। ओके, इट्स अ सेलेनियम कंटेनिंग एंजाइम। MIT एंड DIT आर नॉट यूटिलाइज्ड। देखो, जो भी MIT एंड DIT जिनकी कपलिंग नहीं होती है इनटू T3 एंड T4, they are deiodinated and reutilized in the thyroid cells. Okay, clinical manifestations अब इधर आ जाओ, क्या होती है? Inborn error of metabolism में आता है, it is called deiodinase defect. ये जो एंजाइम है ना यहाँ पे जो मैंने बताया selenium containing and all that, ये deiodinase एंजाइम की डेफिशिएंसी है, इनबॉर्न एरर है। ठीक है, ठीक है, इनबॉर्न एरर है। एंड देन MIT and DIT are excreted in urine. इनकी कपलिंग नहीं होती, कोई T3 T4 नहीं बनता, और ये निकलता है। ट्रीटमेंट क्या है? हमको अब हम आई मीन इट्स अवेलेबल, आयोडाइज सॉल्ट इज अवेलेबल इन द मार्केट। पहले ये होता था कि आयोडीन को देना पड़ता था बाहर से, अब तो आयोडाइज सॉल्ट मिलता है, तो वही सॉल्ट का इंटेक ज्यादा कर देते हैं पेशेंट्स में। ऑलराइट, बट दैट इज द एंजाइम दैट इज डीआयोडीनेज, उसकी डेफिशिएंसी। ठीक है, ऑलराइट, अब हम स्टेप 9 पर आ गए। इट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ थायराइड हार्मोन। इट्स thyroid hormone is transported in the plasma protein bound form. The bound form is biologically inactive. Bound form जो होगा ना T4 का, वो biologically inactive होगा, काम तो T4 को करना है ना। अच्छा, protein bound iodine जो blood में है is about 10 milligrams per deciliter, और thyroxine binding globulin has about 80% of T4 and 60% of T3. Okay, अब हम thyroxine binding globulin की बात करते हैं, जो कि थायरोक्सिन को प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट करे। इसके पास होता है 80% T4 और 60% of T3. The rest of the thyroid hormones are loosely bound with transthyretin. ये बता, मैंने पहली स्लाइड की पिक्चर में बताया था, याद है? TTR, and I told you this is something transthyretin something. ये नाम लिया था, which I mean it is difficult for me to pronounce, so I can understand. लेकिन बेटा इसको प्रोनाउंस करना सीखो। ओके, इट्स ट्रांसथायरेटिन, ओके, TTR, देन दैट्स प्री-एल्ब्यूमिन एंड एल्ब्यूमिन। ठीक है, अच्छा, अब आप आते हैं डिग्रेडेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स पर। क्या हुआ? हाउ इट इज डिग्रेडेड? इट इज अ हाफ लाइफ ऑफ 4 to 7 days। T3 की जस्ट 1 day होती है। T4 is deiodinated in peripheral tissues to T3, and in the liver T3 and T4 are metabolized by UDP, glucuronide transferase,
conjugated with glucuronic acid and excreted through bile, very little through urine. ये पिछली मैंने स्लाइड में बता दिया था बेटा, याद है? Initially I told you all this. Okay. Then thyroid hormone regulation by feedback, ये भी मैंने बता दिया था वहीं पर कि प्लाज्मा का थायराइड लेवल अगर ज्यादा है तो शॉर्ट रूप से पिट्यूटरी से वो बताएगा नॉट टू गिव टीएसएच, लॉन्ग रूप से हाइपोथैलेमस को बोलेगा एंड इटसेल्फ अगर टीएसएच का लेवल ज्यादा हो रहा है प्लाज्मा में तो वो बोलेगा हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक, आई डोंट वांट एनी मोर ऑफ टीआरएच। ऑलराइट, दिस इज योर नेगेटिव फीडबैक। ऑलराइट बेटा, अब हम जल्दी से मेटाबॉलिक रोल पर आ जाते हैं। दैट्स नियरली ओके। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, T4 increases rate of absorption of glucose from intestine। यह याद रखो बेटा, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि how come T4 is being T4 has a role to play in increasing blood sugar level। okay, ये कैसे ब्लड शुगर को बढ़ाता है? T4 का क्या काम है? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज को बढ़ाता है। देन इट प्रोमोट्स हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को भी बढ़ाएगा ताकि वो ग्लूकोज बने। अच्छा, वैसे एक तरफ ये ग्लाइकोलिसिस भी बढ़ाता है, एचएमपी शंट भी बढ़ाता है और टीसीए भी। देखो एचएमपी शंट, टीसीए, ग्लाइकोलिसिस का क्या मतलब हुआ? इट इज यूटिलाइजिंग ग्लूकोज। ग्लाइकोलिटिक पाथवे यूटिलाइजेस ग्लूकोज, लेकिन इसका ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन एचएमपी शंट करना, टीसीए करना कम है एज कंपेयर टू इट्स रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड ग्लाइकोजिनोलाइटिक इफेक्ट। ठीक है, ग्लाइकोजन को तोड़ने वाला इफेक्ट ज्यादा है, कंजम्पशन वाला थोड़ा कम है लेकिन है। देखो फिर क्या है? इट डिक्रीजेस हेपेटिक स्टोर्स ऑफ ग्लाइकोजन। कैसे? हेपेटिक स्टोर्स ऑफ ग्लाइकोजन, लिवर में जो ग्लाइकोजन है उसको तो वो ब्रेक डाउन कर रहा है ना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कर रहा है, तो इट इज इंक्रीजिंग योर ब्लड शुगर लेवल। ऑलराइट, in large doses, that is in hyperthyroidism, it produces hyperglycemia and glycosuria। अब बात समझ में आई? हाइपरथायरॉइड का पेशेंट होता है ना, जिसमें हाई लेवल ऑफ थायराइड थायरॉक्सिन होता है, उसके अंदर ग्लाइकोसूरिया होता है, क्योंकि थायरॉक्सिन ग्लूकोज को भी बढ़ाता है फ्रॉम एब्जॉर्प्शन और ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी करता है, उसको तोड़ता है ग्लाइकोजन के स्टोर्स। ऑलराइट, तो ब्लड शुगर बढ़ेगा, ब्लड शुगर बढ़ेगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो ग्लाइकोसूरिया भी होगा। ऑलराइट, हाइपरग्लाइसीमिया है तो ग्लाइकोसूरिया भी हो रहा है। व्हाट द पॉइंट? ऑलराइट, डिक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस। ठीक है, एज थायरॉक्सिन इंक्रीजेस डिग्रेडेशन ऑफ इंसुलिन। थायरॉक्सिन इंसुलिन की ब्रेकडाउन में भी हेल्प करता है। अगर इंसुलिन की ब्रेकडाउन करवा रहा है थायरॉक्सिन तो नेचुरली डायबिटिक पिक्चर आएगा। ठीक है ना, तो हाइपरथायरॉइडिज्म में देयर इज डिक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस। ठीक है, अच्छा, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में इट्स मोर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। क्या कर रहा है? इट प्रोमोट्स पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। एनाबॉलिज्म कर रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस हुआ एंड स्टिमुलेट्स ग्रोथ। हाइपरथायरॉइडिज्म में प्रोटीन कैटाबॉलिज्म हो रही है, बहुत ज्यादा है, कॉजेज नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, सिवियर मसल वीकनेस, क्रिएटिनियूरिया नोन एज थायरोटॉक्सिक मायोपैथी। मायोपैथी हो रही है लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थायरॉक्सिन, हाई लेवल ऑफ थायरॉक्सिन, तो क्रिएटिनियूरिया होगा क्योंकि मसल का मेन जो स्टोरेज है फॉर द एनर्जी इज थ्रू क्रिएटिन फॉस्फेट। पढ़ा है ना क्रिएटिन फॉस्फेट का, तो फॉस्फेट निकल गया, क्रिएटिन एक्सक्रीट आउट हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द मसल मास। ऑलराइट, अब आप लिपिड पे आ जाओ। लिपिड मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज लाइपोलाइसिस इन एडिपोज टिश्यू, इंक्रीजेस प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड लेवल। कोलेस्ट्रॉल पे क्या कर रहा है? इंक्रीजेस रेट ऑफ सिंथेसिस एज वेल एज रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। बाइल एसिड फॉर्मेशन फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो इंक्रीज्ड। बाइल एसिड बनती है फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, रिमेंबर, फोलिक एसिड एंड कीनोडीऑक्सीफोलिक एसिड, रिमेंबर, ये सारे जो है ये बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल एसिड आते ही कोलेस्ट्रॉल से हैं, तो वो उसकी सिंथेसिस की थ्रू कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। देन एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इट इंक्रीजेस इन हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपोथायरॉइडिज्म जब कम थायरॉक्सिन है तो एलडीएल बढ़ जाता है एंड डिक्रीजेस इन हाइपरथायरॉइडिज्म। नाउ वी कम टू थर्मोजेनिक इफेक्ट। थर्मोजेनिक इफेक्ट गिविंग यू हीट इफेक्ट। Thyroid hormone affect all cells of the body. The thermogenic effect जो है ना is due to uncoupling of oxidative phosphorylation। ये तो याद रखो। हाइपरथायरॉइड का पेशेंट होता है ना, उसको फीलिंग ऑफ वार्मथ ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को अनकपल कर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या करता है, वो अनकपलिंग करता है। एटीपी नहीं बनता, ओके, इन एटीपी नहीं बनेगा, लेकिन ऑक्सीजन इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू गिव यू हीट एनर्जी। और इन लार्ज, देखो लार्ज डोजेस का क्या मतलब है, बहुत ज्यादा अगर थायरोक्सिन है तो, हाइपर है तो, इट स्वेल्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड इंक्रीजेस बीएमआर। जो हाइपरथायरॉइड के पेशेंट होते हैं उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन। एंड थायरोक्सिन इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ कैरोटीन टू विटामिन ए, इसलिए भी याद रखो कैरोटीन से विटामिन ए के लिए भी थायरोक्सिन की जरूरत होती है। और अब बोन प्रोटीन पे क्या है, थायरोक्सिन मोबिलाइजेस बोन प्रोटीन कॉजिंग हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीयूरिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ये लार्ज डोजेस की मैं बात करती हूँ, ठीक है। नॉर्मली वो थोड़ा बहुत मोबिलाइज करता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ऑस्टियोपोरोसिस कर दे, नो, बट इन लार्ज डोजेस इट कैन कॉज हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीयूरिया, ठीक है, and osteoporosis. Then skin protein, along with hyaluronic acid and chondroitin sulfate, there are attached proteins. याद रखो, chondroitin sulfate and ये कहना चाहिए hyaluronic acid के साथ कुछ proteins attached होते हैं। क्या होता है, hypothyroidism में these protein complexes cause water retention, which makes skin puffy. Normally ये attached होते हैं और इनके कोई इस तरह का complex नहीं बनता, but they are there, holding your hyaluronic acid in its position and chondroitin sulfate in your connective tissue in a position. अब क्या हुआ, अगर hypothyroidism है तो ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स था ना with hyaluronic acid and chondroitin sulfate, ये इससे वाटर की स्वेलिंग हो जाती है, ये वाटर रिटेन करता है और एक पफीनेस देता है, जो कि स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर एक पफी लुक होता है हाइपोथायरॉइड पेशेंट। हाइपर में नहीं होगा, हाइपोथायरॉइड का पेशेंट देखो तो एक पफी लुक होता है, एक स्वेलिंग वाला लुक आता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थायरोक्सिन मोबिलाइजेस दिस प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस कॉजिंग डायूरेसिस एंड, अगर इन पेशेंट्स को हम थायरोक्सिन फिर बाहर से देते हैं तो क्या होता है बेटा, डायूरेसिस होती है, जाहिर एडिमा खत्म हो जाएगा ना, वाटर रिटेंशन था, वाटर निकल गया और पफीनेस खत्म हो जाता है। ठीक है, अब एबनॉर्मैलिटीज ऑफ थायराइड फंक्शन में हाइपर एंड हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपरथायरॉइडिज्म दो टाइप के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इज ड्यू टू डिजीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जिसमें ग्रेव्स डिजीज, टॉक्सिक एडिनोमा, टॉक्सिक नोडुलर गॉइटर, थायराइड कार्सिनोमा, टीएसएच रिसेप्टर म्यूटेशन एंड आयोडीन एक्सेस आता है। सेकेंडरी में आई नो टाइम हो गया है, मैंने 15 मिनट ऊपर ले लिए, बस 5 मिनट और दे दो, ओके, जस्ट 5 मिनट्स मोर। सेकेंडरी हाइपरथायरॉइडिज्म इज ड्यू टू डिजीज ऑफ पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, TSH secreting tuber adenothyroid. All right. Okay, then we come to hypothyroidism, primary and secondary. Primary is due to disease of the thyroid gland. Okay, बेटा, तो देखो प्राइमरी हमेशा उसको बोलते हैं जो कि अपने ग्लैंड से रिलेटेड हो, सेकेंडरी इसको बोलते हैं जो कि एल्सवेयर हो। रिमेंबर, इवन इन केस ऑफ पेनक्रियाज, अगर प्राइमरी डेफिशिएंसी इंसुलिन के अंदर है, पेनक्रियाज में है, तो प्राइमरी है। और सेकेंडरी डायबिटीज कब होता है, जबकि कहीं और प्रॉब्लम हो, पेनक्रियाज तो सही है, प्रॉब्लम कहीं और है। इसी तरह थायराइड का भी प्रॉब्लम है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपोथायरॉइडिज्म में इटसेल्फ आपका ग्लैंड प्रोड्यूस नहीं करता है थायरोक्सिन, और सेकेंडरी कब होगा, वहां से तो थायरोक्सिन आ रहा है, मे बी रिसेप्टर्स बॉडी के काम ना कर रहे हो, receptors are not functioning, or there is some problem elsewhere. समझ आ गई बेटा प्राइमरी एंड सेकेंडरी की बात। इसी तरह हाइपोथायरॉइडिज्म की बात है और इसी तरह हाइपरथायरॉइडिज्म की बात है। ठीक है, ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉइडिज्म होता है। ऑटो इम्यून डिजीज में बेटा हाशिमोटो बहुत आपको नजर आएंगे, पेशेंट्स मिल जाते हैं, मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ पेशेंट्स देख लिए हैं हाशिमोटोज वाले। उसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट सेल्स बन जाते हैं बेटा, एंड गॉइटर हो जाता है। ठीक है, दैट्स हाशिमोटो, या थायरॉइडेक्टोमी हो जाए सर्जरी की वजह से या एनीथिंग। ड्रग कॉजेस हाइपोथायरॉइडिज्म, कुछ ड्रग्स भी हैं जैसे लिथियम, लिथियम भी अक्सर दिया जाता है टू साइकियाट्रिक पेशेंट्स इफ नीड अराइजेस। देन वी हैव पैरा एमाइनोसैलिसाइलिक एसिड एंड एंटी-थायरॉइड ड्रग्स। सेकेंडरी, एज आई सेड, डिजीज कुड बी एनीवेयर, पिट्यूटरी में, हाइपोथैलेमस और एनीवेयर। इसमें भी होता है पिट्यूटरी ट्यूमर, पिट्यूटरी सर्जरी या शीहेन सिंड्रोम या रेडिएशन। ब्लड लेवल देखो,
Blood level of TSH and TRH will help you to differentiate between primary and secondary hypothyroidism. बेटा TSH लेवल और TRL लेवल जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग का और थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का हमको करना जरूरी होता है। उसको करने से हमें पता चलता है कि whether it is primary cause of hypothyroidism or it is secondary cause of hypothyroidism, whether it is the primary cause of hyperthyroidism or it's secondary cause of hyperthyroidism. तो हमको डिफरेंशिएट करने के लिए हम दो हार्मोन्स को करवाना जरूरी होता है, टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी।